Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta and you're watching Versatile Gupta. Welcome to episode 1 of Spilling My Thoughts on a Saturday. So today's topic is high school survival kit. Basically 9 to 12 एक ही क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे. I am a 12th grader who opted for commerce with maths. So senior most class में हूँ स्कूल की. I can give you very good advice and basically everything जो मुझे लगता है काश मुझे पहले पता होती and things that I'm learning even now. And so that you and I don't feel alone in this podcast kind of video, we have Dodo with us. ये मैंने अभी भी नाम रखा है, don't mind. So Dodo and I are going to share my experiences of high school with you guys. Let's begin. So when we talk about high school, we think of 9th, 10th, 11th and 12th. And it is not just about the classes, I'll be very honest. I think ये जो हमारी learning curve वाली जो age होती है, this 14, 15, 16, 17, बहुत crucial age है. There are so many things you can do, there are so many things that you should not do. Even I am still a part of it and I enjoy it. इसलिए मैं थोड़ा सा divide कर दूँगी this video को class wise. एक तो मैं I'll tell my class wise experience and like canon events. Canon events are basically events या फिर activities या फिर some experience that you have which shapes your identity, like changes you in a way जो तुम्हें चीज़ याद रहती है and shapes your behavior, वो तुम्हारे behavior में आता है. Also, I realized that in the video I'm not talking about academics growth or something. So if you're in 11th or 12th, let me tell you about the PWK batches which can actually help you grow academically. 11th में हो, then you know the batches. Uday 2026 Commerce and Uday 3.2. और अगर क्लास 12th में हो तो परिश्रम प्रो 2026 Commerce. इनके नॉर्मल बैचेस में यू विल गेट 24/7 डाउट सपोर्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एंड वीकली असाइनमेंट्स. प्रो बैचेस में तुम्हें मेंटरशिप मिलेगी, हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलेगी, अपकमिंग बैचेस का ऑलरेडी एक्सेस मिलेगा एंड सो मच मोर. ऑल्सो 2026 CUET की तैयारी कर रहे हो तो प्रवेश CUET कॉमर्स 2026 बैच में एनरोल कर लो. इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, हिंदी, GT, इंग्लिश, मैथ्स, ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड विद PW की ग्रेट फैकल्टी. टीचर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए दे आर गिविंग 85% का डिस्काउंट ऑल्सो, so you can go and purchase those batches. और डिस्काउंट चाहिए तो use my coupon code to get some more discount. And for all this you can check the description. Now let's come back to the video. Since हम लोग classes को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे and we are going to focus on some general things which are quite interesting to know and तुम्हें मेरा opinion पता चलेगा. So let's just start with classes first. Coming to 9th class. देखो, my 9th class was basically the first class after COVID. आफ्टर कोविड इफेक्ट्स वेरी सिंपल. हैंड राइटिंग लिखना भूल चुके थे, पढ़ने की आदत थी नहीं इतना ज़्यादा. 9th क्लास इन जनरल वी से इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड 9th क्लास में एकेडमिक डाउनफॉल बहुत लोगों को फेस होता है एंड इट इज़ ऑब्वियस. अगर तुम अपने ऊपर रखो एंड यू रियलाइज जो तुम्हारी ऑनलाइन के बाद एक क्लास हुई थी वो साल कैसे बीत गया, आई हैव नो आइडिया. 9th क्लास के बेसिकली बस ये कहूँगी जस्ट स्टे फोकस्ड. 9th क्लास 10th क्लास हर किसी के लिए बहुत जनरल बात है कि फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट. डोंट एंगेज योर सेल्फ इन सम थिंग्स विच आर नॉट वेरी यूजफुल टू यू. आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम इन गर्ल्स स्कूल. अपेरेंटली एज दे से द बैड थिंग्स और द थिंग्स दैट आर नॉट गुड और यूजफुल फॉर यू, वो वाला कल्चर हमारे स्कूल में था ही नहीं, राइट? बिकॉज गर्ल्स आर टेंड टू बी, मैं कुछ जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट टेंड टू बी मच मोर healthier in a way or like much more sensible or like थोड़ा दूर रहती फालतू चीज़ों से. It is tend to be. Also हमारा school was also like is also like very good and काफ़ी good girls school वैसे वाला. So ऐसे कुछ culture था नहीं, तो distraction के नाम पे we had nothing. Right? It was just us and our thoughts. 9th class में you will see a lot of people being rude, जो तुम्हें लगेगा rude हो रहे हैं, but with age you realize it was not rude, it was just a phase in their life. You might have remember like तुम्हें याद होगा the time when you were rude or when you were too sweet. Now you have changed and people are tend to change. 9th में तो especially I felt like the COVID की बात है, maybe because of that, maybe because of the class, I felt that a lot of people were changed around me. Now a lot of people change for the worse or the better, that depends, but I'll tell you one thing, high school के friends are going to stay with you. चाहे हाई स्कूल ही से कॉलेज भी से. यू नो वी टेंड टू मेक फ्रेंडशिप्स बचपन में बहुत ऐसी किसी से भी कर लेते हैं, राइट? बट ये बड़े होकर नहीं होता है. वी कॉन्शियसली मेक फ्रेंड्स. बड़े हो जाने के बाद वी डिसाइड कि इसे कौन से लेवल ऑफ फ्रेंडशिप पे रखना है. लाइक आर यू जस्ट क्लासमेट, आर यू लाइक फ्रेंड्स, आर यू क्लोज फ्रेंड, आर यू लाइक बेस्टीज, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी. वी डिवाइड दैट बिकॉज हम कॉन्शियसली भी डिसीजन लेते हैं. ये चीज़ें बचपन में नहीं होती थी. सो 9th एज ए क्लास वी यू स्टार्ट डूइंग दैट एक्चुअली कॉन्शियसली. यू स्टार्ट मेकिंग गुड फ्रेंड्स एंड आई वुड रियली हाईली सजेस्ट, और डीप में इसके बारे में बात करूँगी आगे, but अभी के लिए I would highly suggest be friends with the people who you want to be like, because tell me about your 4 friends and I will tell about you. This quote is very very real because तुम्हारा फ्रेंड जो सर्कल है वो तुम्हें दिखाता है बहुत ज़्यादा.
unconsciously or consciously you become somewhat like them. So be with the people who you want to be like or who you admire, कोई quality उनकी है, something like that. और अभी इस एज में अगर तुम अच्छे friends बना लोगे ना, it will help you. I think they stayed with me, my high school friends. पहले कितने friends थे, कैसे नहीं थे, बहुत पूरी class ही friends, that was another thing. 9th के बाद it was very solid. I have some group of people, these are my friends. So I think this is the thing that is going to happen with you as well. मूविंग टू क्लास 10th, भाई फर्स्ट ईयर तुम बोर्ड्स देते हो, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी लाइफ में आती है, यू रियलाइज देयर इज मोर टू मैथ्स. अकेडमिकली इट वाज ईजियर देन क्लास 9th. अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल से दैट, आई अग्री विद इट. बोर्ड्स आर ईजी, बट मैं तब भी कहूँगी बोर्ड्स इज समथिंग जो तुम्हारे अंदर प्रेशर बिल्डअप करता है, जो तुम्हें कई चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता भी है. आई वुड अग्री दैट. 10th में आई हैव सीन मोस्ट पीपल आर टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बहुत ही ज़्यादा. Even I was one of them, but there can be two possibilities. Either you are the bad company or you are with the bad company. मेरे scene में it was none of it. तो nor I was the bad company nor I was with the bad company in my school. But बाहर का मैं बहुत ज़्यादा influence हो गई. It could be anything. Now it could be taking something in, being with somebody, anything. You can take distraction as anything that you're feeling right now. But you will realize it afterwards कि बहुत ही pointless था. It was not necessary. It was very useless. So just focus on 10th right now. 10th is an easy class. It's a good class. तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है. And you're at an age जहाँ पर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो. Generally, you have time. You have time. The biggest asset you have is time. Even if you're in 9th or you're in 10th, you have a lot of time to improve yourself, to work on you. 11th और 12th बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रेजी हो जाती है. सो 10th इज़ प्रॉब्ली द लास्ट क्लास जहाँ पे तुम एक्चुअली मज़े कर सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हो पढ़ाई के साथ साथ. 11th 12th में तुम्हारा मेजर फोकस अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई में चला जाएगा तुम्हारा सारा टाइम. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ाई है, बैलेंस करने वाले बच्चे कम होते हैं. एंड इट गेट्स लाइक दैट. इवन आई यूज्ड टू बी दैट बैलेंस कर लूँगी सब कुछ वाली बच्ची. 12th में नहीं होता है भाई. इट गेट्स वेरी ट्रिकी. द सिलेबस इज़ बहुत ज़्यादा. डिस्पाइट बीइंग अ कॉमर्स विद मैथ्स स्टूडेंट, मैं कह रही हूँ साइंस के लिए चलो स्टीरियोटाइप कह लो या फिर जनरली इट गेट्स मोर डिफिकल्ट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट जे समथिंग, कुछ भी. 10th is a class where you need to learn and spend your time very wisely. Try to avoid things which are not useful to you at this point, not because of boards or something. देखो of course boards तुम्हारे पास pressure build up करते हैं ना, इसलिए even I am saying that बिकॉज ये सब जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तुम ये कर सकते हो. जब प्रेशर बिल्डअप है ही नहीं तुम्हारे पास तो फिर तो बिल्कुल यू आर टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि क्या ही करना है. यू नो व्हाट इज द पॉइंट. बोर्ड के मार्क्स तो हर कोई तुमसे पूछता है. योर पेरेंट्स आर प्रेशरिंग अबाउट यू. नॉट इवन प्रेशरिंग, तुम्हें खुद फील होता है कि यार सर बोर्ड्स हैं, कहीं और पेपर होंगे. इट इज़ नॉट द यूजुअल प्रोसेस. इट इज़ नॉट द यूजुअल एग्जाम. सो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज विद यू in this time, but I know you are going to take it easy. It's going to be a good year. Just stay focused, don't get distracted very much. And one advice very easily I will give you. अगर एक साल बाद जो भी चीज़ तुम कर रहे हो वो तुम्हें याद नहीं रहेगी. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम और स्पेंडिंग योर टाइम और वेस्टिंग योर टाइम, माइंड माई वर्ड्स, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग और वेस्टिंग योर टाइम ऑन सम पीपल, ऑन समबडी और समथिंग, और अगर तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट आफ्टर 1 year, क्या जो भी चीज़ तुम अभी कर रहे हो एट दिस एज या फिर एट दिस पॉइंट, क्या वो तुम्हें एक साल बाद तुम्हें काम आएगा? क्या वो तुम्हारे बोर्ड्स में काम आएगा? क्या तुम्हें वो 11th में काम आएगा? इफ़ नो, क्विट इट राइट नाउ एज सून एज पॉसिबल. बहुत ही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए. बाकी अगर तुम्हें लगता है कि एक साल बाद भी इस चीज़ का इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी पे रहेगा, देन कंटिन्यू इट. तो फिर तो इम्पैक्टफुल चीज़ें करो. नहीं रहेगा इफ़ यू थिंक कि मैं तो सोचूंगा भी नहीं या फिर सोचूंगी भी नहीं इसके बारे में अगले साल तक कि इस बारे में आई वोंट इवन थिंक कि आई विल बी सैड, आई विल बी हैप्पी और एनीथिंग, then leave it right now. Coming to 11th class, बहुत ही क्रेजी क्लास. अकेडमिकली कम बैक भी होता है, डाउनफॉल भी होता है. बहुत लोगों का डाउनफॉल होता है, बट मैंने खुद कम बैक भी देखा है लोगों का. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट सीरियस इन 11th कि 10th तक जो हुआ वो हुआ. 11th 12th कोर क्लासेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे कॉलेज के लिए, मेरे करियर के लिए. सो दे गेट सीरियस, दे डू मेक इन कम बैक. उनके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, हर एग्जाम्स में तुम्हें दिखेगा एंड यू विल जेन्युइनली सी कि वो शाइन आउट कर रहे हैं. 11th इज़ अ टाइम, देखो स्ट्रीम्स जब डिवाइड हो गई हैं, आई एम नॉट श्योर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो या नहीं, बट दिस इज़ अ टाइम यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स. यू कैन बिल्ड अप योर इमेज अगेन बिकॉज तुम्हारे पास अब नए लोग हैं तुम्हारी क्लास में. इंटेंशनली हो, नॉन इंटेंशनली हो, यू डू हैव न्यू पीपल, थोड़े से न्यू पीपल एटलीस्ट. तो फिर तुम अपनी इमेज को बिल्डअप कर सकते हो. आई जेन्युइनली बिलीव कि जो भी तुम बचपन से सुनते आते हो दैट्स हाउ यू ग्रो अप. बट स्टिल हाई स्कूल और 11th इज सच अ क्लास यू कैन जेन्युइनली चेंज दैट. देखो मैं बचपन से मैं सुनते हुए आ रही हूँ कि वैष्णवी तो कितना बोलती है, वैष्णवी इतनी अच्छी है, बहुत बोलती है, बातूनी है, बोलना बहुत पसंद है. तो आई ग्रू अप लाइक दैट एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट. और मुझे भी लगता है कि येस आई अग्री कि मैं बहुत बोलती हूँ. सो इफ समबडी वुड से ना कि वैष्णवी तो काफ़ी चुप सी रहती है, आई विल गेट अ लिटिल शॉक लाइक क्या बोल रहे हैं. इट्स नॉट ट्रू बिकॉज आई नो माई सेल्फ. देखो 11th में चाहे किसी भी हाई स्कूल ईयर में द टर्म इनसिक्योरिटीज़ वाला चीज़ कम्स when you don't
accept yourself as you who you are. It is easy to say, difficult to accept. Maybe हो सकता है I did not face it, touch wood. But basically देखो, I am not asking you to be self-obsessed but be self-aware. सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो तुम्हारी जनरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है, और वो 11th में करना इज़ क्रूशियल. बिकॉज अब कम टाइम बचे तुम्हारे पास. 9th-10th में तो ठीक है, डजेंट मैटर, यू आर स्टिल अ बच्चा. 11th-12th में you are like 15, 16 or 17. Now it is time for you to get up and know who you are, who you want to be, what is your ideal version, what are you doing for it. I got the exposure late of these things, to read self-help books, to start something new. Internships कर सकते हो तुम, LinkedIn पे आ सकते हो. You can start building your YouTube channel, start creating content, start learning some skill. कुछ भी कर सकते हो. There are so many things to do. So start investing your time in yourself in 11th, जब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है. पढ़ाई है of course, but मैं generally age wise बता रही हूँ. हाई स्कूल का एक्सपीरियंस कैसे रहता है. If you feel that you're insecure because of any reason, that is merely because of you have not accepted yourself. And I'll give you an example. If you say that I am wearing an ugly yellow top, मैं बुरा मानूंगी क्या उसका? नहीं, because I know I am not wearing an ugly top which is yellow, right? So that is the thing. अगर तुम्हें कुछ कह रहा है that you, oh my god, she is so rude, he doesn't talk nicely, he is very misbehaved, ये तो बहुत चुप रहता है, रहती है, बहुत बोलता है, बोलती है, and if it is affecting you, मतलब there is something, there is like at core you still believe that you are that, तभी तुम्हें उन लोगों का judgment affect कर रहा है. As a person who has low-key accepted herself, I would genuinely suggest कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, जैसे कि ताकि तुम्हें इफेक्ट ना हो कोई और अगर तुम्हें कुछ भी कहे. इफ somebody says ना वैष्णवी इज़ वेरी वेरी रूड, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. आई विल जस्ट लाफ इट अवे बिकॉज आई नो आई एम नॉट रूड, राइट. देखो आई अग्री, वही मैंने कहा, बचपन से जब तुम ग्रो अप करते हो, बोल के हर कोई बुलाता है कि तुम बहुत बोलती है, सो यू ग्रो अप लाइक दैट एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ मैं बोलती हूँ. बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि स्टार्टिंग से तुम्हें लोगों ने बोला कि तो स्टार्टिंग से ही और शी इज़ वेरी रूड, स्टार्टिंग से ही और शी डज नॉट टॉक नाइसली समथिंग, I totally understand it could be very difficult to get out of this situation, but you still have the chance. You still have the chance to at least accept yourself and keep reminding yourself that, nahi, I am not that rude. Some people genuinely deserve it, and I am kind to some people. I am kind to animals, I am kind to my juniors, I am kind to this one person, and like that. Dekho, I won't say it will get too late in college या फिर in 12th. मतलब I know it's never too late to do the right thing, but abhi is the very right age. So I would highly suggest that you think about this, take a pause and take some action on it. Talking about last school year, 12th, bhai dekho, if you miss school then you are going to, if you like your school then you're going to miss it so much. Like you know, if nothing kills me, nostalgia will. वैसा वाला होगा तुम्हें 12th में. किसी भी दिन रैंडम दिन यू विल रियलाइज कि शिट यार आई एम इन 12th नाउ, कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम डूइंग दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम having this kind of event in our school, this is the last time I'm going to meet these are teachers. तुम्हारे सामने कुछ टीचर्स रिटायर भी हो रहे होंगे, so it gets थोड़ा नॉस्टैल्जिया तुम्हें फील होगा. If you did not like your school और फिर तुमने अपना हाई स्कूल लाइफ हेट करी है, which I would suggest कि if you are in high school, try not to hate your high school life because इम्पैक्ट तो आगे भी रहेगा, भले वो फ्रेंड्स रहे ना रहे, इम्पैक्ट रहेगा. तुम्हें स्कूल वाले ज़रूर याद नहीं रहे बट स्कूल याद रहेगा बिकॉज इट वॉज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ. 13 years यू हैव स्पेंड इन स्कूल. तो हाई स्कूल ईयर को थोड़ा मेमोरेबल इन अ वे, नॉट एम सेइंग कि ट्रिप्स वगैरह पे जाओ, दोस्तों बनाओ, बट बेसिकली एज स्कूल कनेक्टेड, अपनी एज से कनेक्ट करके, सेल्फ ग्रोथ करके, डू समथिंग विच मेक्स यू बेटर इन जनरल सो दैट यू रिमेंबर इट इवन आफ्टर स्कूल, और वो इम्पैक्ट अच्छा ही जाए तुम्हारे ऊपर, राइट. इसलिए 12th में मैं थोड़ा बहुत काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ, मेक इट मेक सेंस गाइज. बट लाइक मुझे लगा मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. आई वांटेड टू लर्न गिटार, आई वांटेड टू लर्न अ लैंग्वेज, मुझे MENs भी करने हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आई वांट टू डू यूट्यूब एज वेल. देयर वर सो मेनी थिंग्स विच आई फेल्ट लाइक मे बी वॉज नॉट द राइट एज. आई एम नॉट सेइंग मार्क्स इज एवरीथिंग, बट मुझे लगा कि मेरा उतना फोकस नहीं हो पा रहा है, तो फोकस डाइवर्ट करो. इसलिए मैंने पिछले 3 साल हाई स्कूल के मैंने ज़्यादा प्रेशर किया टू डू मोर थिंग्स. 12th में आई वुड नॉट इनकरेज एज मच कि और यू आर ऑलरेडी मेच्योर इनफ और लाइक तुम्हारा इतना मेंटली स्टेबल हो जाते हो दैट यू नो तुम कहाँ देख रहे हो. 12th में बेसिकली तुम्हें पता चल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड. 12th में या फिर ओके, आई एम इन ऑल गर्ल्स स्कूल. मैंने कोविड में ये थोड़ा बहुत कल्चर देखा है बाद में, दैट बेसिकली हाई स्कूल गाइज आर वियर्ड. बाय से गाइज बिकॉज मेरा तो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड गाइज टू. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा जनरल पे मैं आ गई हूँ. लेट्स गो ऑन जनरल ओनली. और आज सीन इज देखो, either a lot of guys know that they're weird and this is not right,
मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, बाद में ऐसा लगता है कि यार मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ, ऐसे खुद ही बता रहे होते, थिंकिंग अज्यूमिंग दैट दिस इज कूल, कि आई एम नॉट अ गुड मैन, आई एम नॉट इनोसेंट एट ऑल, ब्रो दिस इज नॉट कूल, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, it's not very cool to tell somebody who you don't know how you're not innocent and how you do all this kind of things believing how good is that. ये इतना कल्चर मैंने अपने स्कूल में नहीं देखा, I'll be very very honest, मैंने बट बाकी जगह बहुत देखा है. और यू बिकम बैड बिकॉज ऑफ योर कंपनी, बिकॉज तुम्हें कंपनी अच्छी नहीं मिली तो तुम तो बस वो लाइक हाँ भाई है या बहन है, शी इज़ अ गुड ह्यूमन, शी इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन बट शी इज़ माई गुड फ्रेंड. तो मेरी बात सुनती है, वी वाइब टुगेदर, पर मुझे पता है वो थोड़ी अच्छी इंसान नहीं है, वो थोड़ी ऐसी बातें करती है, वो थोड़ा ऐसे जज करती है, he or she looks at him or her that way, तो अच्छा नहीं, थोड़ा दूर ही रहे. And you will not believe, after I have went to coaching centers and MUNs, I realized that even guys know, even guys do know who which guy is good or not. And despite that, if you still are with them, the kind of guys that you don't like in general, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं किसी और को सजेस्ट नहीं करूँगा या फिर मुझे तुम सजेस्ट नहीं करोगे इस बंदे को, but you're still with him as a friend, I would highly suggest, it's for girls and guys, very gender neutral बात कह रही हूँ मैं, don't be with him or her. If you think that girl is not good, कि भाई ये तो मतलब बहुत ही rude है हर किसी से, but वो मेरी friend है, अच्छी है, ठीक है, don't be with her. You're not forced to be with her. Please, just leave them. Try to detach yourself. देखो, I totally understand कि हर किसी की हर बात हमें अच्छी नहीं लग सकती है, and there are people, there are my friends, this छोटा सा group I have, इसमें मे बी लेट्स अज्यूम देयर इज दिस वन गर्ल, आई डोंट लाइक उसकी एक आदत, राइट, पर अब मैं उस वजह से ये नहीं कह रही हूँ कि चलो मेरी फ्रेंड नहीं है बिकॉज मुझे वो उसकी आदत पसंद नहीं, सो शी इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन. नहीं, आई एम नॉट डूइंग दैट, शी इज स्टिल माई फ्रेंड, बट मैंने उसे अपने आप को अटैच नहीं कर रखा. वी आर डिटाच्ड, वी आर फ्रेंड्स बट वी आर डिटाच्ड. अगर वो नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो स्कूल नहीं आ रही है तो मैं भी शायद ना हूँ, अगर हम चारों में से कोई दो भी आ रहा है तो आई वुड कम. वी आर नॉट अटैच्ड, ऐसे नहीं है हम सेम ही कॉलेज जाने के लिए वी आर डूइंग वी आर गोइंग टू सेम कॉलेज, वी आर फ्रेंड्स, वी स्पेंड आवर मोस्ट टाइम टुगेदर बट वी आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, बिकॉज मुझे लगता है कि शी इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या फिर मुझे लगता है आई हैव नॉट मेट माई काइंड ऑफ पीपल येट. सो इफ यू हैव मेट योर काइंड ऑफ पीपल जिसे तुम आइडियल वर्जन भी देखते हो, विच यू थिंक यू कैन अडोर एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड इन जनरली, एंड यू आर विद देम, इट्स वेल एंड गुड. इफ नॉट, जस्ट बी विद द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. For a fact, I am with the best people in my class. I could not have get better group of people with me जो मैंने 9th और 11th में बनाया था, उनसे बेटर नहीं मिल सकता था जो मेरे पास अभी है. तो चाहे वो मेरे लिए बेस्ट हो ना हो, दे आर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. वो क्लास में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आई एम विद द बेस्ट पीपल अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, विच आर वेरी सिमिलर टू मी. सो आई एम विद गुड गर्ल्स, राइट, इवन आई एम वन ऑफ देम. सो बी, आई एम नॉट सेइंग, देखो इट्स योर चॉइस टू बी गुड और बैड, या फिर तुम्हारी वो तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, बट आई एम जस्ट सेइंग बी विद द पीपल दैट यू वांट टू बी विद. हो सकता है तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ करना अच्छा लग सकता हो और वो किसी और को भी पसंद हो, बट मुझे ना दैट यू मे थिंक कि बंक कर लेते हैं ऐसे वाले, तुम्हारे सारे दोस्तों का मेंटालिटी है कि बंक करेंगे मज़ा आएगा, है ना. सो इट इज़ नॉट राइट और रॉन्ग, भाई स्कूल है बंक करना चाहिए, का क्लास यार थोड़ी क्लास तो बंक कर सकते हैं. इट इज़ मेंटालिटी. इफ़ यू आर विद द काइंड ऑफ पीपल जिनकी सेम मेंटालिटी है एंड यू अडोर इट कि हाँ यार बिल्कुल सेम है हम लोग, देन इट्स वेल एंड गुड. यू आर विद योर पीपल एंड यू आर विद योर फ्रेंड्स. बट इफ़ यू आर समबडी कि यार मुझे पढ़ना है बट उसको बंक करने का मन कर रहा है, या मेरे तो बंक करना है बट पूरे टाइम पढ़ने का बोलती रहती है, जिस कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें आ रही हैं और ये बहुत ही बार हो रही हैं, पूरी तुम्हारी पर्सनालिटी में देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. शायद दिस इज़ नॉट योर पर्सन एंड यू आर जस्ट विद देम and there are things that you won't like, because what is the point if he or she is fighting with each other and तुम उसकी साइड भी नहीं रह सकते, because now you know कि वो अच्छी इंसान है ही नहीं यार, तुम दूसरी पार्टी को जाके, दूसरी एनिमी को जाके बोल रहे हो कि यार she is like that, पर तुझे पता ही है रूड है, and that is not a friend, that is not a friend. Why are you with her if you think that he or she is rude or she is not good, और तुम दूसरे को जाके क्यों बता रहे हो, right? So इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो and try to engage yourself less in some kind of weird activities. तुम्हें बाद में जाके regret होगा. Weird activities, now take a moment, pause yourself and think of the weird activities जो तुम्हारे स्कूल में हो रही है. It could be anything. Consuming something which you think is cool secretly, publicly, जैसे भी being with something or doing something which you think तुम्हें पता है कि सही तो नहीं है, बट इज इट लाइक कूल भी नहीं है, बट इट्स फाइन. तुम अपने आप को एक्सेप्टेंस देने की, सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे हो डिस्पाइट नोइंग इट्स नॉट गुड. डोंट डू इट, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर. आई एम जस्ट टेलिंग यू, लेटिंग यू नो दैट यू मे रिग्रेट इट. एंड आई जस्ट सेड अगर अगले साल तुम उस चीज़ पर मैटर नहीं करेगा, जिस चीज़ पे तुम आज बहुत ज़्यादा दुखी हो, देन डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट वेस्ट योर टाइम. बाकी आई थिंक आई हैव सेड इनफ. आई जस्ट होप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनी हो. But yes, I'll be very honest. भाई देखो, if you want a very specific video, just let me know in the comment sections. बाकी let me just tell you, at the end of this video, I am going to give shout outs. I think this series is going to be very good. I hope you enjoy this series because this is a very good way for us to connect and go out of our
बेसिक स्टडी व्लॉग्स वाला थिंग और लाइफ कंटेंट वाला थिंग. दिस इज बेसिकली सिट डाउन वीडियो. यू कैन जस्ट रोम अराउंड, डू योर वर्क एंड लिसन टू मी लाइक अ पॉडकास्ट यू वर्ड, राइट. एंड रूल्स बता दूँ शाउट आउट के लिए. दिस इज बेसिकली अ थिंग, मतलब शाउट आउट इज बेसिकली योर अप्रिसिएशन पोस्ट लाइक आई वुड डू. यू गाइज नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर कमेंटिंग सो मच, फॉर बीइंग लाइक सो मच. तो जिसका भी मेरी लास्ट सैटरडे स्पिल वाली वीडियो में सबसे अच्छा कमेंट मुझे दिखेगा विच आई वुड पर्सनली लव, और लास्ट रिसेंट वीडियोज़ में मुझे कमेंट दिखेगा अपना, लाइक 4 लास्ट वीडियोज़ में या लास्ट 3 वीडियोज़ में मुझे अपना कमेंट दिखेगा तुम्हारा, और अपनी सैटरडे स्पिल वाली वीडियो में भी कमेंट दिखेगा. आई वुड इंक्लूड दोज काइंड ऑफ 3 screenshots or 2 screenshots in this video, appreciating them and thanking them for being there with me. And with that, I think I can end this video. I think I've included a lot of things. सोचना कुछ अच्छा लगे तो let me know. If I missed something, अपना experience please comment में, feel free to do that. Do follow me on Instagram. वहाँ पे I'll definitely check your DM. And it's Vaishnavi. It's the same name, Versatile Gupta. Go follow me there. I'm on LinkedIn as well. Spotify भी है उसमें. You can check all of this. And yeah, bye bye. I'll see you in the next one, in another video या फिर in another episode of Saturday Spills. Bye bye.